Hello friends, welcome back in my another lecture. Today I'm going to solve some more problems on functional having more than one dependent variable as we have done few question in the previous lecture, right? So let's start. Extremize means we have to find extremal of this functional under these given boundary conditions. Here x is an independent variable and y and z are the dependent variable. So this is a functional having two dependent variables, right? Solution. Here the integrand in functional, this is x, y, z, y dash, z dash. Y or z are dependent variable and its value is you can see here y dash square. Y dash means derivative, z dash square derivative with respect to x plus 2y z. So this is a integrand. Now y necessary conditions we have two necessary conditions, one for y and other for z, and x is a independent variable. So we have f with respect to y d upon dx, f with respect to y dash is equal to 0, right? And f with respect to z d upon dx of partial derivative of f with respect to z dash is equal to 0, right? Now using this value of f here as well as here, then let's see partial derivative of f with respect to y. It means except y everything will be constant. With respect to y means this will be 2z d with respect to x with respect to y dash is only in this term, so this will be 2y dash is equal to 0 dividing both side by 2, so this will become d square y upon dx square is equal to z. All right, let us put this is equation number 1. Similarly here using value of f here, partial derivative f with respect to z, so except z everything will be constant. With respect to z means this will be 2y with respect to x with respect to z dash is only in this term, 2z dash is equal to 0. This implies dividing both sides by 2, so d square z upon dx square is equal to y. Let us put this to be equation number 2, right? Differentiating equation 1 twice with respect to x, with x के साथ इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं दो बार, ऑलरेडी दो बार और करेंगे तो हो जाएगा d4y dx4 is equal to d square z dx square. Now d square z upon dx square, because of question 2 is y since of 2, right? So that is what we are getting. We are getting d4y upon dx4 minus y is equal to 0, and its symbolic form will be differential operator of order 4 and y is common is equal to 0. All right, so let us put this to be question number 3. This is symbolic form of this question. Auxiliary question here, auxiliary question means coefficient of y को हमने 0 पुट करना है. d4 minus 1 is equal to 0, तो इसको हम फैक्टर बना सकते हैं d square plus 1 d square minus 1 is equal to 0. This implies d square minus 1 is equal to 0 and d square plus 1 is equal to 0. यहाँ से हमारे पास दो रूट आएंगे प्लस माइनस 1 और यहाँ से हमारे पास दो रूट आएंगे प्लस माइनस आयोटा. वी कैन राइट हियर 0. So these roots are real and different, and this is pair of a complex root. As we know how to write the solution, therefore solution of 3 is, तो इसका 3 का सॉल्यूशन बन जाएगा बिकॉज राइट हैंड साइड 0 है, जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वही इसका सॉल्यूशन होगा. तो बाई की वैल्यू आएगी, पहले रूट्स रियल और डिफरेंट है, दो कांस्टेंट आएंगे c1 e पावर x and c2 e पावर माइनस x बिकॉज रूट्स आर 1 and minus 1, right? Similarly to more roots are there, alpha plus minus alpha beta, alpha is 0 and beta is 1. As we know this is of this type, we already know how to write the solution. Alpha is 0 bracket start
ये हो जाएगा C3 cos बीटा इज 1 and C4 sin x beta is 1, and which further can be written as C1 e power x plus C2 e power minus x. This term is 1, so we are left with C3 cos x plus C4 sin x. This is value of by right. Let us suppose this to be question number 4. Solving this extremal means using these boundary these necessary conditions, we will get the value of y and z. We have just evaluated the value of y. Now we will check it on these given boundary conditions, right? First of all, also we will find z also, right? We can find z like this one. If we differentiate this by 2 times, that will equal to z, right? So here डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, C1 e पावर x, ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, कॉज इज माइनस साइन एंड साइन इज कॉज, ये तो कॉज x रह जाएगा. ऑल्सो डबल डेरिवेटिव भी निकाल देते हैं, d4y अपन सॉरी डी स्क्वायर बाई अपन डी एक्स स्क्वायर, ये तो एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, C2 e पावर माइनस x, साइन का डेरिवेटिव कॉज और कॉज का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन. तो लास्ट टर्म भी हमारे पास क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, राइट. इसको नंबर 5 सपोज कर लेते हैं, राइट. सिंस फ्रॉम इक्वेशन 1 में आप देख सकते हैं z इजकल टू डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. सो वी हैव जस्ट इवैल्यूएटेड दिस, तो दिस इज C1 e पावर x, C2 e पावर माइनस x माइनस C3 cos x minus C4 sin x. This is value of z. So in this way we have evaluated y as well as z. So let us put this to be question number 6, right. Now we will further check these y and z for these given boundary conditions, right. Now फ्रॉम इक्वेशन 4 में हम x और y वाली बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे, ये वाली फर्स्ट 2 बाउंड्री कंडीशंस. फर्स्ट इज राइट हियर, फॉर y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज क्वेश्चन 4 देखो क्या बन जाएगी, x भी 0 है y भी 0 है, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ से C1 x 0 है, C2 you can see here this term will be 0 and this will be C3 प्लस C3 इज इक्वल टू 0. ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7. ऑल्सो फॉर दूसरी बाउंड्री कंडीशन है बाई ऑफ पाई बाय 2 इज इक्वल टू 0. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में पुट करने पर x की जगह पाई बाय 2 रखेंगे, C1 e पावर पाई बाय 2 प्लस C2 e रेज टू पावर माइनस पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 0, साइन पाई बाय 2 इज 1. तो ये जगह प्लस C4 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड तो 0 है बिकॉज बाई ऑफ पाई इज 0 इज इक्वल टू 0. लेट अस सपोज दिस टू बी क्वेश्चन नंबर 8, राइट. सो इन दिस वे फ्रॉम क्वेश्चन 4 we will get 2 equations 7 and 8 using these boundary conditions, right. Similarly we will check question number 6 for rest of these 2 boundary condition. Right. Also from equation 6 for पहली बाउंड्री कंडीशन थी हमारे पास z की फॉर्म में z ऑफ 0 इज इक्वल टू 0. दिस एम्प्लाइज x भी 0 z भी 0. तो क्वेश्चन नंबर 6 से हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास C1 प्लस C2 माइनस C3 बिकॉज cos 0 इज 1, C3 इज इक्वल टू 0. इसको सपोज कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9. ऑल्सो सेकेंड बाउंड्री कंडीशन जो z की फॉर्म है, z पाई बाय 2 इज इक्वल टू, सॉरी दिस इज -1 गिवन, दिस इज -1. सो दिस इम्प्लाइज मी क्वेश्चन नंबर 6 अब बन जाएगी C1 e रेज टू पावर पाई बाई 2 प्लस C2 e पावर माइनस पाई बाई 2. और क्वेश्चन नंबर 6 में देख रहे हैं हम साइन पाई बाई 2 इज 1, तो माइनस C4
राइट हैंड साइड में तो -1 है, बिकॉज you can see here the last boundary condition z pi by 2 is equal to -1, that's why this is equal to -1. इसको नंबर 10 सपोज कर लेते हैं, राइट. नाउ ऑपरेटिंग 7 - 9, ऑपरेटिंग 7 - 9, क्वेश्चन नंबर 7 - 9 करेंगे. 7 पीछे हमने लिखी थी, 9 यहाँ पर है. 7 - 9 करेंगे तो हमारे पास C1 C2 तो कैंसिल हो जाएंगे. सो वी विल गेट 2C3 is equal to 0. So this implies C3 is equal to 0 because 2 is not equal to 0 also. ऑपरेटिंग दूसरा ऑपरेशन भी लगा लेते हैं. 8 - 10, 8 - 10 करते हैं. 8 - 10, 8 - 10 में C1 C2 वाले फैक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2C4 1 1 1 2 हो जाएगा. बस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2. दिस इम्प्लाइज C4 क्या आ जाएगा हमारे पास 1. तो C3 0 आ रहा है और C4 क्या आ रहा है 1. So substitute the value of C3 and C4 either in question number 7, 8 or in 9, 10, right. They're using values of C3, C4 equations 7 and 8 becomes, देखते हैं इक्वेशन 7 और 8 क्या बन जाएगी हमारे पास. C1 C3 0 है तो हमारे पास आएगा C1 + C2 इज इक्वल टू 0. और दूसरी क्या बन जाएगी एंड, और 8 इक्वेशन बन जाएगी C1 e पावर पाई बाई 2 प्लस C2 e रेज टू पावर माइनस पाई बाई 2. C4 1 है, C4 इज 1. हो जाएगा -1 मीन्स यहाँ हो जाएगा -1 वो भी कैंसिल हो जाएंगे आपस में. तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर 0 1. C4 इज 1. ओके, 1 1 कैंसिल फ्रॉम बोथ साइड. तो हमारे पास आ जाएगा 0 यहाँ पर. यहाँ भी बनाएगा C4 इज 1, यहाँ तो ऑलरेडी 1 था, 1 कैंसिल करके बन जाएगा. तो दिस इम्प्लाइज अगर मैं इस क्वेश्चन से C2 की वैल्यू निकालूंगा वो आ जाएगी -C1, राइट. यूजिंग दिस इम्प्लाइज C1 e power pi by 2 because C2 is -1, sorry C2 is -C1 e power minus pi by 2 is equal to 0 since C2 is equal to -C1, just evaluated. This implies C1 is common, e power pi by 2 minus e power minus pi by 2 is equal to 0. This factor is never 0 because the exponential factor है. So only option हमारे पास यहाँ से क्या आ रही है, that is C1 is equal to 0, right. This factor is never equal to 0. लिख सकते हैं यहाँ पर since e raised to power pi by 2 minus e power minus pi by 2 this factor is never equal to 0. तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है C1 is equal to 0. C1 0 होगा, C1 0 यहाँ आगे C2 भी 0 आएगा. therefore हमारे पास C2 भी क्या आ जाएगा 0. So in this way we have evaluated all the values of C1 C2 C3 C4. C1 C2 C3 तो तीनों 0 है और C4 हमारे पास 1 है. therefore using the values of C1 C2 C3 C4 इक्वेशंस, कौन कौन सी इक्वेशन है ये 4 and 6. इक्वेशंस 4 and 6 बिकम्स, देखते हैं 4 मीन्स बाई की वैल्यू आ जाएगी. 4 में पुट करेंगे हमारे पास C1 C2 C3 0 है और C4 1 है. तो हमारे पास ये sin x बन गया, राइट. sin x बन गया एंड 6 में से हमारे पास z आ रहा है. C1 C2 C3 तो 0 है और C4 1 है. तो ये हो जाएगा माइनस साइन x. सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ y and z by substituting the value of C1 C2 C3 C4 are the required extremals, right. Extremals, one is extremal in term of y and other is in term of z. And these are in fact unique extremal because there is no constant at all. All has been eliminated by using the given boundary conditions, right. Let's take second example. Show that the functional this
सच दैट अंडर दिस बाउंड्री कंडीशन इज स्टेशनरी फॉर दीज वैल्यूज, मीन्स जब हम इस फंक्शनल का जो एक्सट्रीमल होगा वो इन एक्स की वैल्यूज़ के लिए आएगा, राइट। स्टेशनरी मीन्स एक्सट्रीमल आए, तो इसका जो फंक्शनल आएगा इन स्टेशनरी वैल्यूज़ के लिए आएगा। ऑल वी वांट टू डू इज using this functional necessary condition, this boundary condition, we want to prove these x must be equal to this one and y must be equal to this one, ये हमको प्रूव करना है, राइट। सो प्रूफ पे चलते हैं। here if we compare this with general, so general हमारे पास जो होता है इस टाइप का आता है प्लस आई बाई ऑफ एक्स इंटीग्रल एक्स नॉट टू x1, तो यहाँ y इसके ब्रैकेट में यहाँ पर होगा x बाई 1 बाई 2 डैश डैश, तो यहाँ आएगा y1 डैश बाई 2 डैश 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 कंटिन्यू विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। सो x इज अ हेयर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बाई 1 बाई 2 सो ऑन कंटिन्यू, ये डिपेंडेंट हो गए, ये इनके फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव है। सिमिलरली हेयर यहाँ पर देखेंगे अगर हम इसका कंपैरिजन करेंगे, t इज इंडिपेंडेंट मीन्स x की जगह हमारे पास t है और x और y क्या है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे यहाँ पर बाई 1 बाई 2 है, यहाँ पर क्या है x और y, राइट। हियर फंक्शनल ये हमारे पास आएगा, अभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास t है, डिपेंडेंट दो x और y है और इनके फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव, इसकी वैल्यू हमारे पास दी है यहाँ के, यू कैन सी 2x प्लस एक्स डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर, राइट। now by necessary conditions we have क्या क्या बनेगी, पहली बनेगी पार्शियल डेरिवेटिव f विद रिस्पेक्ट टू x d अपॉन डी टी f विद रिस्पेक्ट टू x डैश इज इक्वल टू 0, और दूसरी है पार्शियल डेरिवेटिव f विद रिस्पेक्ट टू y d अपॉन डी टी ऑफ पार्शियल f विद रिस्पेक्ट टू y डैश इज इक्वल टू 0। सो एज यूजुअल हमारे पास x होता है, तो x हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय t और x और y हमारे पास यहाँ क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, सो अकॉर्डिंगली ये चेंज हो गए। सो सॉल्व कर लेते हैं इसको यूजिंग दिस वन। दिस इम्प्लाइज f को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये सारे बाकी कॉन्स्टेंट, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे 2 ही रह जाएगा, d विद रिस्पेक्ट टू x डैश करेंगे तो ओनली ये वाला आएगा 2x डैश, 2 कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारे पास आ गया यहाँ से डी स्केयर एक्स अपॉन डी टी स्केयर इज इक्वल टू 1, राइट। इसको नंबर 1 सपोज कर लेते हैं, राइट। सिमिलरली इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू वाई देयर इज नो वाई, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, डी अपॉन डी टी एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश में इसी केवल ये टर्म आएगी 2y डैश हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, रेस्ट ऑल आर 0, देयर इज नो y डैश इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 से तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा डी स्केयर वाई अपॉन डी टी स्केयर इज इक्वल टू 0, राइट। नंबर 2 इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू टी, इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास टी, एक बार एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा बिकॉज डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन कैंसिल इच अदर, रेसिप्रोकल है, तो ये आ जाएगा इसका 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, लेट अस सपोज a1 इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग अगेन फिर से इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग अगेन, तो अब यहाँ पर x ही रहेगा, t का डेरिवेटिव हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस a1 t, इस कांस्टेंट डेरिवेटिव t हो जाएगा प्लस अनदर कांस्टेंट में a2 इज अनदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। सो लेट अस पुट दिस टू बी क्वेश्चन नंबर 3। 1 क्वेश्चन को मैंने 2 बार इंटीग्रेट करके ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसमें बाउंड्री कंडीशन पुट कर लेते हैं, x वाली एक ये है और एक ये है, राइट। फॉर x ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई में क्वेश्चन 3 क्या बन जाएगी, x भी 0 और t भी 0 है, तो t भी 0 मीन्स ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 है, a2 आ जाएगा यहाँ से, a2 इज इक्वल टू 0 सिंस ऑफ 3, थर्ड क्वेश्चन यूज़ की। ऑल्सो दूसरी बाउंड्री कंडीशन है हमारे पास x ऑफ 1 इज इक्वल टू 1.5, दिस इम्प्लाई में क्वेश्चन 3 क्या बन जाएगी, ये तो 1.5 है, इसकी जगह 1 रखो, ये हो जाएगा 1/2 प्लस a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 1.5,
तो यहाँ A2 तो हमारे पास 0 है, तो यहाँ से A1 क्या आ जाएगा, A2 0 है, A1 आएगा 1.5 माइनस हाफ, तो ये जाएगा 1 सिंस ऑफ, यहाँ लिख देते हैं सिंस ऑफ 3, थर्ड क्वेश्चन यूज़ किए, एंड सिंस A2 इज इक्वल टू 0, हाफ को राइट साइड में ले गए तो A1 की वैल्यू आई हमारे पास 1, सो A1 इज 1 एंड A2 इज 0। ये तो यहाँ से आ जाएगा। अब दूसरे आते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 2 को भी इंटीग्रेट कर लेते हैं ऑल्सो। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू t, इसको भी t के साथ इंटीग्रेट कर, एक डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा dy/dt, राइट हैंड साइड तो 0 था तो यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा, 0 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, बाकी इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा b1, वेयर b1 इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेटिंग अगेन एक बार फिर से कर लेते हैं, बिकॉज हमने बाई फाइंड करना है। इंटीग्रेटिंग अगेन मीन्स विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो ये डेरिवेटिव फिनिश ही हो जाएगा, तो y रह जाएगा b1 का डेरिवेटिव, b1 तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन आ जाएगी t प्लस अनदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वेयर b1 b2 आर, लिख सकते हैं आप वेयर b1 b2 आर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कॉन्स्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन, बिकॉज हमने 2 टाइम इंटीग्रेट किया तो 2 कॉन्स्टेंट्स आ गए, तो इस तरह से हमारे पास y की वैल्यू आएगी। लेट अस फॉर दिस टू नंबर 4, इसमें भी बाउंड्री कंडीशन यूज कर लेते हैं। आई डोंट सिंस गिवन पहली बाउंड्री कंडीशन क्या थी हमारे पास y की फॉर्म में, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, सो दिस इंप्लाइज फोर्थ क्वेश्चन x भी 0 है t भी 0 है, b2 इज इक्वल टू 0, राइट, सिंस ऑफ 4, ऑल्सो दूसरी कंडीशन y की फॉर्म में फॉर y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, सो दिस इंप्लाइज मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं, t भी 1 है y भी 1 है तो हो जाएगा b1 प्लस b2 इज इक्वल टू 1 सिंस ऑफ इक्वेशन 4, तो यहाँ से हमारे पास बिकॉज b2 इज 0, b2 ये तो b1 1 आ गया, सिंस b2 इज इक्वल टू 0, राइट, तो b1 और b1 1 है और b2 हमारे पास क्या आएगा 0 आ गया। Therefore, ले लेते हैं फाइनली substituting the values of a1 a2 into a1 a2 की वैल्यू 3 में पुट कर लेते हैं, एंड b1 b2 into b1 और b2 की वैल्यू पुट कर लेते हैं 4 में, राइट, वी गेट, हमको देखते हैं, और जब हम a1 a2 की वैल्यू जो हमने जस्ट फाइंड की थी पीछे, अगर हम 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी t²/2, 3 में पुट कर रहा हूँ मैं, t²/2 प्लस t, एंड b1 और b2 की वैल्यू 4 में पुट कर लेते हैं, y यहाँ पुट कर लेते हैं, b1 हमारे पास 1 है और b2 0, तो t बन जाएगा इज इक्वल टू t, राइट, these are required extremals, right, required extremals, ये प्रूव भी होगा, यही तो हमने प्रूव भी करना था, विच इज प्रूव, यही हमने प्रूव भी करना था, राइट। Okay, let's take, so this is all about extremal of some functional having more than one dependent variable, right? So let's come to new topic, that is isoperimetric problems, right? So what are the isoperimetric problems? Isoperimetric problem means this time we will have two functional, दो functional हमारे पास होंगे, and we have to find the extremal of one functional and keeping other functional constant। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर in this here there are two functional, one is I and another is j, right,
and we want to find extremal of this functional keeping the other functional constant. You can see here the value of this functional second functional is a constant. So अगर कहीं पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी तो ऐसी प्रॉब्लम्स को हम क्या बोल देंगे, आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम, राइट. सो to find the extremal of a given functional, this keeping this functional constant, sometime boundary conditions are also given and sometime not. So accordingly we will solve that, right. So how we will solve it by Lagrange multiplier method. So here let capital F को मैंने कुछ सपोज किया, this is f plus lambda time g, where f is here integrand in first functional and g is integrand in second functional, right. where और इसमें जो lambda आ रहा है, where lambda is Lagrange multiplier, where lambda is a Lagrange multiplier, right. Then by Euler's equation, अब हम Euler equation यूज करेंगे, the necessary condition for existence of the extremal is, वही होगी, स्मॉल f की जगह कैपिटल F है, f विद रिस्पेक्ट टू बाई डी अपन डी एक्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल F विद रिस्पेक्ट टू y डैश. तो लैग्रेंजी इक्वेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, पहले हमारे पास स्मॉल f होता था और यहाँ पर क्या है कैपिटल F, राइट. वेयर आप लिख सकते हैं वेयर इसमें जो कैपिटल F आ रहा है दैट इज स्मॉल f प्लस लैम्डा टाइम स्मॉल g. एंड जब इसको हम सॉल्व करेंगे, this gives required extremal of functional 1. अगर इसको मैं 1 सपोज करूंगा, ऑफ फंक्शनल 1 अंडर द कंडीशन 2. जब इसको मैं 2 सपोज करूंगा तो so what are the isoparametric problem? Isoparametric problem arises when we have two functional and one functional, we have to find extremal of one of the functional and keeping other functional constant. So such problem give rise to isoparametric problem. Let's take some example. Find the extremal of this functional. ये function इसका मैंने extremal निकालना है under the given these conditions subject to constant. सेकेंड फंक्शन एक और दिया है विच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. जैसे यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है 1 है, तो हमको पहले इसका कंपैरिजन इसके साथ करना है. यहाँ से हमने f और g निकालने हैं, राइट. हियर यू कैन सी हियर f में ये x y डैश में x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है. इसकी वैल्यू ये है y डैश स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर. g भी निकाल लेते हैं, g इसमें भी x इंडिपेंडेंट और y डिपेंडेंट है. इसकी वैल्यू इंटीग्रेंट ये है हमारे पास ओनली y. दिस इज इंटीग्रेंट इन फर्स्ट जिसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं, इंटीग्रेंट इन सेकंड y है जिसको हम g से डिनोट करेंगे, राइट. नाउ बाय टेलर लैग्रेंजीज मेथड हमारे पास कैपिटल F आ जाएगा, स्मॉल f प्लस लैम्डा टाइम g. इन दोनों की वैल्यू पुट कर लेते हैं, वाई डैश स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस लैम्डा टाइम वाई. इन दोनों के वैल्यू मैंने वैल्यू पुट किया फॉर जी की, वेयर लैम्डा इज लैग्रेंजीज मल्टीप्लायर, राइट. नाउ बाय टेलर्स इक्वेशन यूज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल F बाई डी अपॉन डी एक्स ऑफ कैपिटल F विद रिस्पेक्ट टू y डैश इज इक्वल टू 0. इसको सॉल्व कर लेते हैं. f विद रिस्पेक्ट टू y,
विद रिस्पेक्ट टू वाई केवल इसमें है, इसमें है, तो हो जाएगा -2y प्लस लैम्डा माइनस डी अपन डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश केवल यहाँ पर है 2y डैश इज इक्वल टू 0, -2 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये तो बन जाएगा डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र माइनस माइनस प्लस वाई, बिकॉज -2 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं। राइट साइड में क्या हो जाएगा, ये माइनस होना था, आगे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय 2। राइट, सिंस ऑफ दिस इज बिकॉज ऑफ लिख देते हैं सिंस ऑफ डिवाइडिंग बाय -2 से मैंने डिवाइड कर लिया। राइट, तो हमारे पास एक इक्वेशन ये बन जाएगी। इसको थोड़ा सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं, डी स्क्र प्लस 1 बाई इज कॉमन इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2। लेट अस फॉर दिस टू बी इक्वेशन नंबर 1। राइट, हियर ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख देते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन मीन्स कोफिशिएंट ऑफ वाई को 0 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस आईटा, प्लस माइनस आईटा मीन 0 प्लस माइनस, पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं, तो बिकॉज राइट हैंड साइड 0 नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा, देयरफॉर सी एफ मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, रूट्स आर पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स, अल्फा 0 है ई पावर 0x, c1 cos x बीटा 1 है प्लस c2 sin x, फॉर्मूला भी ऑलरेडी नो, ई पावर 0x इज 1, तो ये बन जाएगा c1 cos x प्लस c2 sin x। राइट, ऑल्सो पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y है डी स्क्र प्लस 1 इंटू राइट हैंड साइड है लैम्डा डिवाइडेड बाय 2, इसके साथ में ई पावर 0x भी लिख सकता हूँ। राइट, ई पावर 0x, तो दिस इज पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस टाइप 1 अपॉन एफ ऑफ डी ई रेज़ टू पावर ए एक्स। इस केस में हम डी को किससे रिप्लेस करते हैं, ए से, सो व्हाट इज ए इन दिस केस, ए इन दिस केस इज 0, बिकॉज ई पावर 0x 1 होता है, डी को रिप्लेस करेंगे 0 से, डी के साथ 0 करो और ये क्या बन जाएगा सारा लैम्डा बाय 2 ही बनेगा, बिकॉज ये 1 बन जाएगा, ई पावर 0 वैसे ही 1 होता है, तो वी आर लेफ्ट विद लैम्डा बाय 2 बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल। राइट, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज, इसका सॉल्यूशन जो y होगा सी एफ प्लस पी आई, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों को वैल्यू पुट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू तो ये है c1 cos x प्लस c2 sin x, ये यहाँ से पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास लैम्डा बाय 2 है, लैम्डा डिवाइडेड बाय 2, सो दिस इज वैल्यू ऑफ y। लेट अस सपोज दिस टू बी इक्वेशन नंबर 2। अभी तक हमने इस वाली इक्वेशन का क्या निकाल दिया, सॉल्यूशन निकाल दिया। राइट, नाउ बाउंड्री कंडीशन पुट कर लेते हैं। गिवन और y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, ये पहली बाउंड्री कंडीशन है, x भी 0 है y भी 0 है, 2 बिकम्स इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी हमारे पास, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा c1 प्लस लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू 0। राइट, तो यहाँ से दैट इज c1 की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय 2, इसको मैं 3 सपोज कर रहा हूँ। ऑल्सो दूसरी कंडीशन पुट कर लेते हैं, ऑल्सो फॉर दूसरी बाउंड्री कंडीशन है बाई ऑफ पाई, ये भी गिवन है, इज इक्वल टू 1, तो देख लेते हैं 2 क्या बन जाएगी, 2 बिकम्स, जब हम क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास माइनस c1 प्लस लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से c1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास लैम्डा बाय 2 माइनस 1, ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। कंपेयरिंग 3 एंड 4, कंपेयरिंग 3 एंड 4, 3 और 4 में लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, वी हैव हमारे पास आएगा माइनस लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 माइनस 1, तो हो जाएगा 2 लैम्डा बाय 2, तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाएगी यहाँ से, लैम्डा इज इक्वल टू 1, लैम्डा 1 आ गया, लैम्डा 1 होगा तो हमारे पास दोनों आ गए, देयरफॉर c1 आ गया, लैम्डा 1 है तो आएगा माइनस 1 बाय 2 सिंस ऑफ इक्वेशन नंबर 3, तो c1 हमारे पास ये आ गया।
अब इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड C1 इनटू, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं, इनटू इक्वेशन 2 वी गेट, देखते हैं हमारे पास इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, बाई की वैल्यू आ जाएगी, C1 तो माइनस हाफ है, माइनस हाफ कॉज एक्स, C2 निकला ही नहीं, एज इट इज रहेगा C2 साइन एक्स, और लैम्डा हमारे पास 1 आ गया, प्लस लैम्डा बाय 2 मीन्स 1/2 बन जाएगा, इसको 3 4 इसको लेट अस सपोज कर लेते हैं 5। अभी हमको C2 निकालना पड़ेगा, राइट। सिंस गिवन, और भी कुछ दिया है हमारे पास, सिंस गिवन हमारे पास गिवन है 0 to पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to y y dx, दिस इज गिवन टू बी 1, ये गिवन था हमारे पास। यहाँ पर पुट कर लेते हैं 0 to पाई, बाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, माइनस हाफ कॉज एक्स प्लस C2 साइन एक्स प्लस हाफ ब्रैकेट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एक्स इजकल टू 1, सिंस ऑफ इक्वेशन नंबर 5। अब इसको इंटीग्रेशन करना हमने, बिल्कुल सिंपल है, माइनस हाफ तो कांस्टेंट है, कॉस की इंटीग्रेशन साइन ही होती है, और साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस होती है, माइनस मैंने लिख दिया, और हाफ कांस्टेंट है, इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगी, एक्स ही आ जाएगी, राइट। और लिमिट है 0 to पाई इज इक्वल टू 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, साइन पाई तो 0 होता है, साइन पाई 0, एंड अबाउट कॉस पाई -1 होता है, कॉस पाई इज -1, इनको अपर लिमिट बन जाएगी हमारे पास 0 प्लस C2 प्लस π/2, दिस इज अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, ये भी 0 0 माइनस C2 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हमारे पास C2 प्लस C2 हो जाएगा 2C2, 1 माइनस π/2, 1 माइनस π/2, दैट इज हमारे पास C2 की वैल्यू आ रही है हाफ माइनस पाई डिवाइडेड बाय 4, तो CT की वैल्यू आ गई, राइट। फाइनली इस वैल्यू को क्वेश्चन नंबर ऊपर पुट कर लेते हैं अब, फाइनली substituting the value of C2 into equation 5, इस क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं यहाँ पर C2 में, we get, हमको क्या मिल जाएगा, we get y इज इक्वल टू माइनस हाफ, तो वैसे रहेगा कॉज एक्स, C2 की वैल्यू है हाफ माइनस, इसकी वैल्यू मेरे पास हाफ माइनस π/4, और साथ में साइन एक्स वैसे ही है, साइन एक्स ऐसे ही है, प्लस हाफ इज एज इट इज, जस्ट मैंने यहाँ पर C2 की वैल्यू पुट की है, राइट। सो इस तरह से हमारे पास सारे कांस्टेंट भी एलिमिनेट हो गए, लैम्डा एज वेल एज अ कांस्टेंट, विच इज द रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल ऑफ गिवन फंक्शनल, जो पहला वाला फंक्शनल है उसमें से, राइट। सो दिस इज अ आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम, इसको हमने लैग्रेंजी क्वेश्चन यूज़ करके और लैग्रेंजी मल्टीप्लायर मेथड यूज़ करके किया है, जो उसमें लैम्डा आया था, लैम्डा इज लैग्रेंजी मल्टीप्लायर, राइट। सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, this is again related to isoperimetric problem. Find the extremal of this functional under the second functional given to be constant, ये ध्यान रखना हमने, and some boundary conditions are also given। हमको कैसे लगेगा पता, प्रॉब्लम आइसोपैरामेट्रिक होगी जब हमारे पास दो फंक्शनल होंगे और एक फंक्शनल का हमने एक्सट्रीमल निकालना है और दूसरा वाला फंक्शनल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यू कैन सी हियर सेकंड फंक्शनल इज इक्वल टू 1 एंड 1 कांस्टेंट है, तो हम इमीडिएट बोल देंगे दिस इज अ आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम। कुछ बाउंड्री कंडीशन भी दी हैं, राइट। हियर पहले तो लिख देते हम, हियर एफ एक्स वाई वाई डैश, एफ मीन्स इंटीग्रेंड इन फर्स्ट फंक्शनल, ये वाई डैश स्क्वायर है, वाई डैश स्क्वायर, एंड जी एक्स वाई वाई डैश, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई डिपेंडेंट है, जी मीन्स इंटीग्रेंड इन सेकंड फंक्शनल, ये बाई है हमारे पास, दिस इज गिवन टू बी वाई, हियर दिस गिवन है, बस हमने कंपैरिजन किया है, राइट।
गिवन, हमको बस पता होना चाहिए एफ क्या होगा, जी क्या होगा। एफ इज इंटीग्रेंट इन फर्स्ट फंक्शनल एंड जी इज इंटीग्रेंट इन द सेकंड फंक्शनल विच इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसका इंटीग्रेंट वाई है, राइट। नाउ वाई Lagrange's multiplier मेथड, कैपिटल एफ आ जाएगा स्मॉल एफ प्लस लैम्डा टाइम जी। तो स्मॉल एफ की वैल्यू पुट कर लेते हैं, वाई डैश स्क्वेयर प्लस लैम्डा टाइम जी है हमारे पास वाई, राइट। वैल्यू मैंने ऊपर से पुट कर ली यहाँ से जो हमने कंपैरिजन करके निकाली थी, वेयर लैम्डा इज Lagrange's मल्टीप्लायर, राइट। ये तो एफ की वैल्यू हो गई। सिंस वाई टेलर क्वेश्चन, अब टेलर क्वेश्चन यूज कर लेते हैं। टेलर्स इक्वेशन वी हैव, हमारे पास ये क्या बन जाएगा, हमारा रहेगा पार्शियल डेरिवेटिव कैपिटल एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई डी अपन डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो लैम्डा ही बचेगा, तो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन माइनस डी अपन डी एक्स ऑफ विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश करेंगे, वाई डैश करेंगे मीन्स वाई डैश इज ओनली इन दिस टर्म, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश, तो ये बन जाएगा 2y डैश दैट्स 0 है इज इक्वल टू 0, राइट। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको मैं 1 सपोज कर लेता हूँ, लिख भी देता हूँ यहाँ पर, सिंस ऑफ क्वेश्चन 1, राइट। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को। 2 से मैंने डिवाइड किया और लैम्डा को राइट हैंड साइड में ले गए, राइट। इसको इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेटिंग, क्योंकि सीधा ये निकल जाएगा इसका, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ करेंगे तो एक डेरिवेटिव डिक्रीज हो जाएगा डी वाई अपन डी एक्स, लैम्डा बाई 2 कॉन्स्टेंट है, एक्स के साथ इंटीग्रेशन करें तो एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, फिर C1 इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेटिंग अगेन फिर से एक बार इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग अगेन डी वाई पर डी एक्स ऑफ वाई बन जाएगा बिकॉज डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। लैम्डा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे 4 हो जाएगा, C1 एक्स एक अनदर कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, वेयर C1 C2 आर कॉन्स्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन, बिकॉज हमने टू टाइम इंटीग्रेशन किया तो 2 कांस्टेंट आ जाएंगे, एक साइड कहीं भी लिख सकते हैं उनको हम, राइट। इसको नंबर 2 सपोज कर लेते हैं। सिंस गिवन बाउंड्री कंडीशन यूज कर लेते हैं, सिंस गिवन पहली कंडीशन है बाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, यू कैन सी हियर सिंस गिवन बाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 मीन्स एक्स भी 0 और बाई भी 0 है, तो ये कंडीशन एक्चुअली में ऐसी होती है इस तरह से, तो एक्स भी 0 और बाई भी 0 है। सिंस गिवन दिस वन क्वेश्चन 2 बिकम्स क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा C2 आ जाएगा यहाँ से, C2 इज इक्वल टू 0, राइट। ऑल्सो फॉर दूसरी बाउंड्री कंडीशन y ऑफ 2 इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 2 बिकम्स नाउ x इज 2 एंड y इज 1, बाई x इज 2, x 2 रखेंगे तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा x इज 2 C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 1, बिकॉज C2 इज 0, तो यहाँ से हमारे पास 2 C1 आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा, तो यहाँ से हमारे पास C1 आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय 2, तो C2 हमारे पास 0 आ गया और C1 लैम्डा की फॉर्म में आ गया, राइट। यूजिंग द वैल्यूज ऑफ C1 C2 क्वेश्चन 2 बिकम्स, देखते हैं क्वेश्चन 2 क्या बन जाएगी, तो क्वेश्चन 2 बन जाएगी बाई इज इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर रेज टू डिवाइडेड बाई 4 प्लस C1 है हमारे पास 1 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स एंड C2 इज 0। लेट अस सपोज दिस टू बी क्वेश्चन नंबर 3। अभी भी कांस्टेंट हमारे एलिमिनेट, कांस्टेंट तो C1 C2 एलिमिनेट हो गए, अब हमने लैम्डा निकालना है, राइट।
नाउ सिंस वी हैव गिवन सेकेंड फंक्शनल इट्स वैल्यू इक्वल टू 1 कांस्टेंट, ये गिवन है हमारे पास, इसको यूज कर लेते हैं। since given integration from 0 to 2 sorry 0 to 2 y dx this is given to be 1 और क्वेश्चन नंबर 3 हम यूज कर लेंगे यहाँ पर, दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 y की वैल्यू पुट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से, वो थी लैम्डा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 1 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स, राइट, ब्रैकेट क्लोज, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 1 सिंस ऑफ इक्वेशन 3 जो हमने जस्ट फाइंड की थी, वहाँ से मैंने यहाँ पर बाई की वैल्यू पुट किया। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। लैम्डा बाय 4 इज कॉन्स्टेंट, ये हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3। सिमिलरली 1 माइनस लैम्डा अपॉन 2 इज कॉन्स्टेंट, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। लिमिट है हमारे पास 0 to 2 इज इक्वल टू 1, सिंपल इंटीग्रेशन। सो वट विल दिस बिकम अपर लिमिट लैम्डा बाय 12, ये हो जाएगा 8। नेक्स्ट 2 to 4, ये 4 हो जाएगा, 4 4 कैंसिल, सो वी आर लेफ्ट विद 1 माइनस लैम्डा, दिस इज अपर लिमिट। लोअर लिमिट, लोअर में हर जगह एक्स है तो 0 हो जाएगा, दिस इज लोअर लिमिट इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ रहा है, क्या आ रहा है 2 लैम्डा बाय 3 लैम्डा बाय 3 4 3 12 8, ओके। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1, 1 1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा, 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारे पास माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू 0 आ रही है, राइट। Thus for lambda is equal to 0, equation 3 becomes, अब हमारे पास लैग्रेंजी मल्टीप्लाई की वैल्यू भी आ गई, y इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर लेते हैं 3 में, लैम्डा 0 है तो पहली टर्म तो 0 बन गई, 0 प्लस लैम्डा 0 है हमारे पास 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स, तो ये सारा क्या बन जाएगा हमारे पास x डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया हमारे पास विच इज required extremal of given functional, जिसका हमने गिवन फंक्शन मीन्स फर्स्ट फंक्शनल, राइट, क्योंकि बस 2 फंक्शनल है फर्स्ट फंक्शनल में गिवन फंक्शनल, राइट। सो डियर फ्रेंड्स, व्हाट वी हैव लर्न इन दिस लेक्चर, वी हैव लर्न how to find the extremal of a functional having more than one dependent variable, like this type x by 1 by 2 dash dash by 1 dash by 2 dash 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 this. So how to find extremal of functional having more than one dependent variable, you can see here by 1 and by 2 are the 2 dependent variable, तो उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, means more than one. And one more thing that we come to know, that is isoperimetric problem, right? Isoperimetric problem, isoperimetric problems means जिसमें हमारे पास 2 फंक्शनल दिए होंगे, एक फंक्शनल का हमने एक्सट्रीमल निकालना है और दूसरा वाला फंक्शनल कांस्टेंट के इक्वल होगा। अगर कहीं पर ऐसे 2 फंक्शनल दिए होंगे, एक कांस्टेंट है दूसरे का हमें एक्सट्रीमल निकालना है, तो सच सिचुएशन और सच प्रॉब्लम give arise to isoperimetric problem. So
this is all about this lecture. Thank you.